Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is transport layer. Transport layer provides transparent, reliable and cost-effective transfer of data between upper layers entities in an system. It is the fourth layer of OSI reference model. Main goal of transport layer is to abstract the structure and the function of network so upper layer can communicate without needing to consider the network technology. Now, there are some duties of transport layer like end-to-end delivery, addressing, reliable delivery, flow control and multiplexing. So first of all, we will see one by one. So first duty of transport layer is end-to-end delivery. Means when network layer sees end-to-end delivery of individual packet, but it does not see any relationship between those packets, even those to the single message. So transport layer treats each as independent entity or packet. So this is end-to-end delivery. Second duty of transport layer is addressing. Yes, so here whenever the client needs address of remote control for remote computer, so it want to communicate with each other. So such remote computers has unique address, so it can be distinguished or differentiate from all other computing. Means whatever the address is given to each and every computer, so that is the identity of that particular computer, so that is addressing. Next one is reliable delivery. So reliable delivery has many issues like error control, sequence control, loss control, duplicate control and flow control. So if any error is generated during transmission, so transport layer primary goal is how to control those errors and how a data is sent with error free in error free medium. Yes, so that is the duty of transport layer. Second one is sequence control. So whenever the datagram is divided into many packets, so at that time each and every packet is given a number, a sequence number. Yes, so in such a way these packets are sent from one side to another side, and on the receiver side these packets are again combined and make a whole datagram. So that is the duty of transport layer. Third one is loss control. If any loss is occurred during transmission, at that time that packet is retransmitted by sender. Yes, so this loss control is also handled by transport layer. Next one is duplication control. Here in a transport layer, two protocols TCP and UDP protocols are used. So here transport layer is responsible to control the duplicate duplicate packets whenever the sending from one side to another side. Yes, so it takes guarantee that not even single packet arrive at the receiving system that is duplicated. Okay, next duty of transport layer is flow control. This concept is already came in our previous chapter. What is flow control? Flow control means if someone's speed is higher than the another speed, so at that time
To control that flow, we are sending echo messages through that. Sender knows my speed is faster, so it reduces its speed for transmitting packets. Yes, so this flow control mechanism is handled with the help of transport layer. Now we will see one by one. Okay, so first one is transport service. So here transport service, in a transport service we will see upper layer services and transport service primitives. So here this is transport layer, this is network layer, and this is here actually this is a TCP IP model. So here this is a combination of network transport, sorry, this is application layer, this is transport layer, and this is the network layer. This is host 1 and this is host 2. So here in host 1, this is the application layer, or session is maintained at application layer side. Here this is the interface between these two layers. Transport entity is sent from one host to another host with the help of transport protocol data units. Yes, so simply it shows the structure how services is provided to the upper layers. Means whenever the data is coming from the this side, receiving side, then one by one protocol header is removed and service is provided to this upper layer. So here these are network transport and application layers. Okay, next is transport service primitives. Now what is transport service primitives? So these are services are provided with the help of transport protocol. So here these are the different kind of operations, or you can say these are the services. So first one is listen, then connect, send, receive, and disconnect. So these kind of operations are performed by transport layer. So here simple, here packet send. So how whenever the packet is sending, so at that time which kind of network language is used for sending that packet. Yes, and what is the meaning of that? So here first operation is listen, and here packet send none. Means अभी वो देख रहा है कि अभी पैकेट सेंड नहीं किया, जस्ट वो लिसन कर रहा है कि हाउ मैनी होस्ट आर देयर इन नेटवर्क. ओके, सो ब्लॉक अंटिल सम प्रोसेस ट्राइज टू कनेक्ट. अभी सेंडर है वो लिसन कर रहा है नेटवर्क में कि कितने होस्ट है, ठीक है, जो उसको रिस्पॉन्स देगा तो उसको वो पैकेट है वो सेंड करेगा. अभी उसने पैकेट सेंड नहीं किया, वो चेक कर रहा है कि हाउ मेनी होस्ट और हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर एक्टिवली इन अ नेटवर्क. नेक्स्ट वन इज कनेक्ट. सो कनेक्शन रिक्वायर्ड. यस, सो एक्टिवली अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कनेक्शन. जब भी सामने जो नेटवर्क में जो होस्ट है, अगर वो होस्ट है, ठीक है, वो एक्टिवली है, ठीक है, देन कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. यस, जो मतलब जो लिसन कर रहे हैं होस्ट की रिक्वेस्ट, ऑल आर रिसीवर्स. सो देन अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड receiver. Now it's time to send a packet from sender to receiver. So now sender is sending the data to the receiver. Yes, so here the packet is sent. Yes, packet is sent means data is sent. So sender is sending data to the receiver. Now receive. Now packet is not sent. Block until data packet arrives. अभी sender ने data send किया है, अभी नेटवर्क में है, रिसीवर को नहीं मिला है, अभी उसने रिसीव नहीं किया. तो जब तक रिसीवर वो पैकेट को रिसीव नहीं करता है तब तक वो ब्लॉक मोड में रहेगा. जब वो पैकेट रिसीव करेगा तब है वो अनब्लॉक हो जाएगा. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिस्कनेक्ट. मीन्स डिस्कनेक्ट. यस, डिस्कनेक्शन रिक्वायर्ड.
तो यहाँ पे क्या है कि सेंडर ने पैकेट सेंड कर दिया, रिसीवर ने पैकेट रिसीव कर दिया, अब दोनों को डिसकनेक्ट होना है, ठीक है। अब आगे उनको कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा डिसकनेक्ट, तो यहाँ पे दोनों डिसकनेक्ट हो जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन अ ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के एलिमेंट्स क्या है, तो हमने ऑलरेडी आगे देख लिए, एड्रेसिंग, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन रिलीज, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग। यस, सिमिलरिटी बिटवीन डेटा लिंक एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। अब डेटा लिंक लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो उन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। तो दोनों में है कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन रिलीज करते हैं, एरर एंड फ्लो कंट्रोल भी हैंडल होता है इन दोनों लेयर से। सो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, अब ट्रांसपोर्ट लेयर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये फर्स्ट है, ये दो फिगर है, दिस इज फिगर ए, दिस इज फिगर बी। सो एनवायरमेंट ऑफ डेटा लिंक लेयर, ये है, ये डेटा लिंक लेयर में इस तरह से कि राउटर है, ठीक है, वो डेटा सेंड कर, तो फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल मतलब वायर के थ्रू, जो हमारे कंप्यूटर के साथ जो वायर अटैच है, तो वो फिजिकल मीडियम के थ्रू डेटा है वो आगे पास होता है, फिजिकल में, फिर डेटा लिंक लेयर में, फिर आगे के लेयर में। जबकि ये है एनवायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का एनवायरमेंट कैसा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे है, ये राउटर है, तो राउटर है वो दूसरे राउटर को डेटा सेंड करेगा, दूसरे राउटर है वो कंप्यूटर को वो डेटा देगा, और कंप्यूटर है वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू अपना डेटा है वो व्यू कर सकता है। ये है नेटवर्क बाउंड्री, ठीक है, ये नेटवर्क बाउंड्री है, ठीक है। तो दिस इज environment of transport layer and this is the environment of data link layer। ओके, अब यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट देखे हैं, ये एड्रेसिंग, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, रिलीज, ये सारे वन बाय वन हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली है कि एड्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो एड्रेसिंग पोर्ट है, ये पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सर्विंग एड्रेसिंग पोर्ट, ठीक है, या अब जो ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम इस पोर्ट के थ्रू इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। दिस इज़ होस्ट 1, दिस इज़ होस्ट 2, ठीक है। यहाँ से एप्लीकेशन लेयर में से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटा है, ये प्रोसेस थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे हम यहाँ पे आता है, फिर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो है TSAP 1522, ये है 1836, ये पोर्ट के थ्रू, यहाँ पे दो सर्वर है, इस पोर्ट के थ्रू हमारा डेटा है वो एक्सेस होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो सिंपली एड्रेसिंग का मतलब क्या है, एड्रेसिंग मतलब कि जो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, उस पोर्ट के थ्रू, जो हमें पता है एड्रेसिंग मतलब लॉजिकल एड्रेस भी चाहिए, फिजिकल एड्रेस भी चाहिए, बट उसके अलावा जब हमारा डेटा एक्सेस होता है, तो वो डेटा एक्सेस कब होगा कि हाँ वो है OS के थ्रू, यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स है, तो वो पोर्ट्स के थ्रू हमारा डेटा है वो एक्सेस होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एड्रेसिंग, ओके। सिंपली यहाँ पे दिखाया है कि हाउ यूजर प्रोसेस इन होस्ट 1 एस्टेब्लिश कनेक्शन विथ मेल सर्वर इन होस्ट 2 वाया प्रोसेस सर्वर। तो यहाँ पे दो दिखाए हैं कि जैसे कि यहाँ पे है ये, यहाँ से यूज़र है वो डेटा है, तो प्रोसेस सर्वर के थ्रू यहाँ पे डेटा है वो एक्सेस होता है, यहाँ पे मेल सर्वर के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे डेटा है वो एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस, ये है नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये लेयर 5 है, ये 4 है, ये 3 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यूज़र मतलब एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। इस तरह से आगे भी है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे दिखा है कि प्रोसेस के थ्रू डेटा एक्सेस होके यहाँ पे डेटा जाता है,
ओके, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब दो कंप्यूटर है, दो होस्ट है, सो हाउ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन दैम। सो हियर techniques for restricting packet lifetime. Okay, different kind of techniques we are using for sending the packets. That packet is live in a network, so we will see how which techniques we are using. So first one is throw away transport addressing, means we are sending the transport addresses from one host to another host. Second technique is each connection identifier, peer transport entity and connection entity. So through connection identifier we can easily uh, transmit data from one host to another host. तो यहाँ पे दूसरा है कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो कनेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पीयर मतलब 1 to 1, तो ट्रांसपोर्ट एंटिटी भी चाहिए और कनेक्शन एंटिटी भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेंटेन हिस्ट्री प्रॉब्लम इफ क्रैश्ड, अगर कंप्यूटर है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर क्रैश हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके रीजंस क्या है, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क डिज़ाइन है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई ऐसी मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि हमें पता है कि इस नेटवर्क में यहाँ पे इस पॉइंट पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन देंगे। पुटिंग अ होप काउंटर इन ईच पैकेट। ठीक है, हर एक यहाँ पे सिंपली है कि भाई होप काउंटर इन ईच पैकेट मतलब क्या, यहाँ पे अगर क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो होप काउंटर मतलब यहाँ पे जो हमारा डेटा है, पैकेट्स है, ठीक है, वो 1 by 1 राउटर के थ्रू जाता है। ठीक है, अगर एक राउटर में प्रॉब्लम हुई तो हम दूसरे राउटर में वो पैकेट है मतलब नेटवर्क ही है, उस पैकेट को रीडायरेक्ट करके आगे सेंड करेगा। टाइम स्टैम्पिंग ईच पैकेट। ठीक है, हर एक पैकेट का टाइम डिफाइन है कि कितने टाइम तक ये पैकेट है वो नेटवर्क में लाइव रहेगा। ऑल्सो एक्नॉलेजमेंट नीड्स टू बी इरेज्ड विथ टाइम टी। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट मैसेज है, ठीक है, अगर वो भी चाहिए, ठीक है, नीड्स टू बी इरेज्ड विथ टाइम टी। ठीक है, अगर हमें पता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ये है होस्ट 1 और ये है होस्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन CR मीन्स कनेक्शन रिक्वेस्ट, ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट। पहले होस्ट 1 है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है होस्ट 2 को। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीक्वेंस X मतलब सपोज हमारा डेटाग्राम है वो 5 पैकेट्स में डिवाइड हुआ है, तो सीक्वेंस X मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले तो अभी तो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो यहाँ पे सीक्वेंस भी मेंटेन होती है। ठीक है, एट द कनेक्शन रिक्वेस्ट टाइम, तो यहाँ पे सेंड होता है, ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है। एक्नॉलेजमेंट मैसेज है तो ACK X मतलब जो उसका नंबर होगा सीक्वेंस का वही नंबर एक्नॉलेजमेंट मैसेज का होगा, और ये नई सीक्वेंस है वो उसके बाद वाली, ठीक है, वो सेंड करेगा। फिर उसको मिल जाती, उसके बाद होस्ट 1 है वो डेटा सेंड करता है होस्ट 2 को। तो जब भी डेटा सेंड होता है तो उस टाइम पे सीक्वेंस है वो सेम रहेंगी। एक्नॉलेजमेंट मैसेज यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे Y थी तो इसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी कौन सा रहेगा, Y। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस X थी तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है X, यहाँ पे सीक्वेंस Y तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मैसेज Y रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल से हमें यहाँ पे डिफाइन किया, एक्चुअली नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 1, ठीक है, सीक्वेंस इज इक्वल टू 1, तो होस्ट 2 जब रिप्लाई करता है तो यहाँ पे होगा ACK इज इक्वल टू 1 और उसके बाद वाला मतलब सीक्वेंस इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे आएगा कि सीक्वेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा यहाँ पे सीक्वेंस X है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो ये है 3-वे हैंडशेक। ठीक है, 1 2 and 3। So these 3 protocol scenarios for connection establishment using 3-way handshake। ठीक है, ये 3 फर्स्ट हैंडशेक मतलब इन दोनों ने कम्युनिकेट किया,
फिर से यहाँ पे कम्युनिकेट किया और फिर से यहाँ पे कम्युनिकेट किया। सो दिस इज़ 1, 2 एंड 3, 3-वे हैंडशेक सिनारियो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली नॉर्मल ऑपरेशंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो है दिस इज़ अ 3 प्रोटोकॉल सिनारियो फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन यूजिंग 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक तो है ही, और यहाँ पे क्या है कि जो ओल्ड डुप्लीकेट कनेक्शन रिक्वेस्ट अपीयरिंग आउट ऑफ नोवेयर, मतलब यहाँ पे होस्ट 1 ने रिक्वेस्ट जो सेंड की थी कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे इन बिटवीन यहाँ पे ओल्ड डुप्लीकेट्स, मतलब जो ओल्ड डुप्लीकेट मतलब पुराना डुप्लीकेट डेटा है वो सेंड हो गया है। इसने उसको तो ये लगा कि करंट है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, फिर एक्नॉलेजमेंट मैसेज के थ्रू होस्ट 1 को पता चलता है कि मैंने तो जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वो पुराने डेटा के बेस पे वो डेटा रिक्वेस्ट सेंड की है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रिजेक्ट है, ठीक है, जैसे कि कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ पे होस्ट 2 के साथ वो क्या करेगा, ये रिजेक्ट मैसेज के थ्रू यहाँ पे उसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा कि ये रिक्वेस्ट ओल्ड थी, मतलब डुप्लीकेट डेटा है वो उसने सेंड किया है, कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो सेंड की है। ठीक है, ये है 3-वे प्रोटोकॉल सिनेरियो फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन यूजिंग 3-वे हैंडशेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पता ही है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट है, डुप्लीकेट कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे है ये डुप्लीकेट है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में मैसेज मिला, फिर यहाँ पे जब डेटा यहाँ पे सेंड होता है तो यहाँ पे है वो कनेक्शन बीच में से ब्रेक हो जाते, दिस इज ओल्ड डुप्लीकेट इज सेंड फ्रॉम होस्ट 1 टू होस्ट 2। ठीक है, तो होस्ट 2 यहाँ पे सेंड करता है। ठीक है, फिर उसको पता चलता, तो इसीलिए होस्ट है वो फिर से यहाँ पे रिजेक्ट मैसेज के थ्रू जो एक्नॉलेजमेंट वाई है वो सेंड करता है। ठीक है, तो उससे उसको पता चलता है कि ये उसको रिजेक्ट करना है, लेना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।